Today we have to discuss methods of solving differential equation. We have three types of methods. So first we have to go for first order differential equation. First order, first degree. And the degree will be first and the order will be first. At that time, how we can solve it? Is it clear? So first order, first degree, we have to go for first. We have to solve for first order and first degree. We have to go on this thing. First order, clear? We have to go for first order, first degree. In this, what we have to do, we have a differential equation. First, we have to know how is it. Like if the equation is in the form dy by dx is equal to fx. Here, what you are getting, degree is 1 and order is also 1. Here, first order dy by dx equal to fx. Otherwise, you are getting this kind of a form dy by dx equal to fy. You are getting this kind of form. Clear? So first of all, we have to go through this kind of form dy by dx equal to fx, and secondly dy by dx equal to fy. For this kind of thing, what we have to do? We have to do one thing, that we have to go for a differential equation in variable separable form. Clear? Differential equation in variable separable form. Variable separable form is what you have to do. You have to separate y to y and x to x. y वाले टर्म से एक तरफ और x वाले टर्म एक तरफ. क्लियर? dx हो तो x की तरफ और dy हो तो y की तरफ. राइट? उसको उसके बाद उसको रिड्यूस करेंगे. You have to reduce the variable separable form. उसके छोटे फॉर्म में लेकर आएंगे. And then we have to go for homogeneous differential equation, linear differential equation. जितने भी इक्वेशन इसमें आएंगे, इनको पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो हाउ वी कैन सॉल्व इट. तो जाहिर सी बात है कि जब हम इक्वेशंस देखेंगे, दैट पहला टाइप क्या है? dy by dx equal to fx और dy by dx equal to fy. Clear? So when you can talk about fx, you are talking about this one, this term. So dy is equal to fx dx. Is it clear? ये बन गया. इसके बाद क्या किया? This one is dy and you have to go for a y. What we will do? We will integrate. Clear? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. Integrating dy fx इंटीग्रेशन dx. Is it clear? उसके बाद y इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेटिंग fx dx. जो भी यहाँ पे टर्म होगा वे क्या होगा? इंटीग्रेट होगा. और आपके बाद उसके बाद आपको क्या मिलेगा? फॉर्म मिलेगा. Is it clear? In the same way, if you can go for dy by dx equal to fy. Clear? If you can talking about dy by dx equal to fy, you are talking about this term. Clear? In this term, what you have to do simply, if you can talk about this term, dy by dx equal to fy. So what we have to do? That dy by dx equal to fy. With the cross multiplication, we will do dy equal to dy by fy is equal to dx. Clear? Getting my point? And out up to this point, clear? dy upon fy equal to dx. Is it clear? But what we have to do? This will be downside. Clear? इसको यहाँ पर साइड कर सकते हैं. यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा. 1 upon fy is equal to dx upon dy. ये हो सकता है. Clear? 1 upon fy equal to dx upon dy. Now what we will do? Dx upon dy equal to 1 upon fy. Clear? We have something. If you can go for the value of an dx, the same. If you can go for a value of a dx equal to dy upon f. Here. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? We have an integration. If you can integrate dx and integrate 1 upon fy into, right? ऐसा integrate हो सकता है. It will be in integrating form. Clear? And then when you can integrate dx, you will get x equal to integration dy upon fy. And whatever the value, you can integrate according to this. And after integration, we will get the form. Clear? So this is the two methods that when the equation is in the form of dy by dx equal to fx, or equation is in the form of dy by dx equal to fy, you have to use this kind of concept. Clear? Actually, what you are doing simply that x
2x, y to y. X one side and y one side. You have to do this thing. You need to mind this thing. Clear? So you are going through this equation. So we have to solve first. We have to solve few questions on this. Okay? हम इसके कुछ questions करते हैं. And after that we will go for next form. That one is simply we have a next form also. Equation in variable separable form. Clear? After this we will come. So first we will solve one question and then we will do anything. Clear? Made up? So if I will go for a one question on the first form dy by dx equal to fx, इसको हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे मैंने मेथड्स बताए, whatever the method I told, that we have to go for dy by dx is equal to dy by dx equal to x upon x square plus 1. dy by dx equal to x upon x square plus 1. No doubt at all. If dy by dx equal to x upon x square plus 1, what we have to do? We have to go for one thing. Dx will be this side. Okay? So dy equal to x upon x square plus 1 into dx. And it out to this point. So we have dy equal to x upon x square plus 1 dx. Is it clear? Now what we will do? We have to go for one thing more. We have to go for an integration. Is it clear? When you can go for an integration, you will get the term. Clear? When you can, why you are integrating here you are getting dy. dy को integrate करेंगे तभी होगा. Integrating both sides. Integrating both sides. When you can integrate, integration dy is equal to integration x upon x square plus 1 dx. Is it clear? Integrate करने की कोशिश करें आप. That's it. As I told, differentiation and integration are most important. अब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज समझ में आएगा. अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है कि नहीं. अब आप यूज करें जितने भी मेथड्स हैं. अब इसमें क्विक मेथड होना चाहिए. क्विक मेथड का मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप क्वेश्चन देखें और बता दें. डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया बाउंड हो गया, ये सारे इंटीग्रेशंस यूज हो गए. और ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड मैथ्स, उसमें एक मैथ सेकंड है. In the second math you will get only integration and differentiation, only differential equation. आपको बस differential equation के लिए ही मैथ्स पढ़ाया जाता है. तो उसमें आपकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे होने चाहिए. इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx. अगर आप ये इंटीग्रेशन पूछा जाए y इक्वल टू ये कैसे होगा? यहाँ पर x we have x, here x स्क्वायर प्लस 1, it will be equal to t. Clear? अगर इसको देखें हम ऐसे करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x dx इक्वल टू dt. dx इक्वल टू dt अपॉन 2x. इज इट क्लियर? x कैंसिल हो जाएगा. 1/2 क्लियर. 1/2 dt अपॉन t. क्या बचेगा? 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t. इसका मतलब क्या होगा? log t. log t का मतलब t की जगह पे क्या पुट करेंगे? x स्क्वायर प्लस 1. So directly I am writing here. If I write directly here, इसको इंटीग्रेट करने के बाद मैं डायरेक्टली 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 यही होगा. इसके सिवाय कुछ होगा नहीं. तो आपको क्या मिलेगा? y इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1. मिल रहा है? Head out up to this point. Clear? Head out. ये आपका इंटीग्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए. नहीं तो आप फिर आप ढूंढते रह जाओगे और इसको मैं भी कुछ नहीं करता. क्या आप देख रहे हैं ट्रांसफर की मैथ जो है एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में उसका यूज है. ये आपको क्लियर होगा. Now we
dx equal to fy. Now we'll go for a one question on that also. These are the basics questions. Plus y equal to 1. Right? So we have dy by dx equal to 1 minus dy said this y will be this time. Okay? Dy is equal to 1 minus y dx. Cross multiplication. Now dx equal to dy upon 1 minus. Okay? And out after this point. And we both sides. Right. Next. dx equal to 1 minus y. Is it clear? X equal to dy upon 1 minus y. Minus block. Because minus dy equal to dt minus right minus log or minus clear. And it out of this point. Clear? Now we will go for our next method. That one is variable separable form. Equations in variable separable form. Most important topics are going on. Of class 12, these are the base of the class 12. ये नहीं होगा तो बीएससी नहीं होगा, तो माइंड याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट रट के आप बीएससी कर लेंगे, जैसे आप 5 क्वेश्चन अच्छे फिर अलग बात। नॉलेज के लिए ये मैथ्स होना जरूरी है। और आप ओपन करके सिलेबस देख सकते हैं इंटरनेट पे, किसी भी कॉलेज के बीएससी का सेम सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बस पढ़ाने का तरीका और पेपर का पैटर्न अलग होता है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड बुक सेम है, बस पढ़ने का पढ़ाने का ट्रिक अलग अलग होता है, पेपर का पैटर्न अलग होता है, लेवल अलग होता है। आपका लेवल सबसे हाई होता है। आईसीएसई द मोस्ट प्रॉब्लम इज मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्या होता है, कुछ चैप्टर को पहले पढ़ा दिया जाता है, सेकंड इज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्शंस नीडेड। बट इफ यू कैन गो फॉर मैथमेटिक्स एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट, उनको उतना ही आता है जितना उनके उसमें हो, सेट्स वगैरह उनको थोड़े ज़्यादा होते हैं। यूपी बोर्ड में आप जाएंगे तो दे डोंट मैटर, डजंट मैटर कम्युनिकेशन स्किल, उनको पैटर्न नहीं पता है, उनका पेपर का पैटर्न सिंपल होता है, क्वेश्चन दिया है सॉल्व करना, आपकी तरह ट्विस्ट करके नहीं होता कि घूम के आ रहा है, आपको समझना है। तो आप एक बार इसको एनालिसिस करेंगे तो सब कुछ वही पढ़ रहा है, एवरीवन इज गोइंग फॉर द सेम। आप यूपी बोर्ड की बुक्स उठा के देखिए, उसमें भी वही क्वेश्चन दिया जो आडिशन माइनस एल्फा में दिया, बस तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है पढ़ाने का, पढ़ने का, और कुछ नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आती है। आईसीएसई को बलिया में है तो इंग्लिश हिंदी सबको समझता है, बाहर में जाएगा तो उसको इंग्लिश ही क्लियर होता है, हिंदी क्लियर नहीं। तो आपको हिंदी में इसका क्या मतलब है ये नहीं पता है, लेकिन आपको हिंदी समझ में आती है। आपको डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में बोलेगा भी अलग बात है, एक बार देखेंगे आपको आ जाएगा, लेकिन आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं इतना बहुत है। कॉन्सेप्ट मैथ्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में भी वही है। जब हम इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करते हैं तो जैसे कि अगर आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन fx dx इक्वल टू
dy dy. If you have this kind of an equation, इस फॉर्म में तो आपको क्या करना है? यू हैव दिस फॉर्म। तो सबसे पहले अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपको इस फॉर्म में लाने की जरूरत है। मतलब x वाले टर्म्स एक साथ लाइए और y वाले टर्म्स को एक साथ लाइए। x टर्म्स वन साइड एंड y टर्म्स वन साइड। मतलब जिधर आपने dx लिखा है उधर x वाला टर्म राइट करिए एंड वेयर यू हैव रिटन dy you have to write the term of y. After that you have a simple thing, you have to do the integration. आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपको अपना काम करना है। You have to do your own work. Okay, after integration you have to do your own work. So what we have to do? We have equations x plus 1 dy by dx equal to 2xy. X plus 1 dy by dx equal to 2xy. तो यहाँ सेपरेट करना है और इंटीग्रेट भी आपको करना है। Separation is important and integration is also important, but separation बहुत मुश्किल है। अब उसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप सेपरेट करेंगे, हाउ वी विल सेपरेट? कैसे होगा इसका सेपरेशन? x plus 1 divided by dx equal to 2xy. Here we have an x also and here we have a y. Here we have x plus 1 dy equal to 2xy dx. ये हमने कर दिया। ये यहाँ आएगा और ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, राइट? dy अपॉन हो सकता है 2x dx और नोट आउट सेपरेशन है सेपरेट हो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सॉल्व दिस। व्हेन देयर इज अ नीड टू सॉल्व, इंटीग्रेशन यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक जब इंटीग्रेशन करेंगे 2x upon x plus 1, all the integration will take place. If you can take x plus 1 equal to t, this will be dx. 2x upon x plus 1 integration we have to do. Simple. dy upon y is equal to 2 will be outside. तो क्या करेंगे? आउटसाइड का जो कांस्टेंट है नो इशू है। नीचे की डिनोमिनेटर में क्या है? x plus 1 है। x plus 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे x plus 1। अगर ऐसा मैं करूँ कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? नो इम्पैक्ट एट ऑल ऑन द इक्वेशन। व्हेन देयर इज नो इम्पैक्ट एट ऑल ऑन द इक्वेशन, dy by y equal to 2 here integration x plus 1 upon x plus 1 dx minus dx upon x plus 1 हो गया। ये होगा ये पूरा इसके साथ, ये dx पूरा है इसके साथ, फिर माइनस इसके साथ और ये क्लियर। सो व्हाट वी हैव टू टेक dy upon y। यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो dy upon y equal to 1 upon y। 1 upon y means dy upon log y। ये कितना हो गया? log y। log y equal to 2। x plus 1 कैंसिल, क्या बचेगा? dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x minus dx upon x plus 1
निगेटिव अगर आएगा तो निगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ निगेटिव है नहीं, पॉजिटिव क्या हो जाएगा log x प्लस माइनस log x प्लस प्लस ये राइट। यहाँ से हो गया log y इक्वल टू 2x माइनस 2 log x प्लस log y इक्वल टू 2x माइनस 2 log x प्लस 1। ये आपका फॉर्म आया log y इक्वल टू 2x माइनस 2 log x plus 1. It's coming. This one is the differential equation. Is it clear? यही इस differential equation का solution है. This one is the solution of the given differential equation. Is it clear? Clear? Read out. ट्रिक से ये सेपरेट हो माइंड सेपरेट, हाँ सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट। सेपरेट करने का इसका यही तरीका है, x जिधर आपने dx लिखा है उधर सारे x वाले होंगे, या मल्टीप्लिकेशन में राइट करिए या तो डिवीजन में राइट करिए, डजंट मैटर। जिधर आपने dy लिखा है उधर y वाले सारे टर्म होंगे जैसे भी, क्योंकि डिवीजन में होगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, दोनों टाइम पे इंटीग्रेट हो जाएगा और तभी जाके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। क्लियर? Clear? Linear differential equation. Linear differential equation. Clear? For the solution of a differential equation. ये भी एक अलग मेथड है differential equation का solution निकालने के लिए। Linear differential equation. Linear differential equation that you will get this form dy by dx plus dy equal to t. आपको ऐसा फॉर्म है। If you are getting this kind of form और ऐसे फॉर्म का solution निकालना, ऐसा differential equation है। If you are getting this kind of differential equation and you have to go for the solution of this kind of differential equation, dy by dx plus dy equal to t. कुछ तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, कुछ इनडायरेक्टली आपको मिलेगा, जिनको इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। हर में वेरिएबल सेपरेबल में है, dy by dx equal to fx में है, dy by dx equal to fy, सब में ऐसा ही है। कुछ को तो लाना पड़ेगा, कुछ डायरेक्ट, कुछ अपने आप डायरेक्टली होगा, मोस्टली होंगे, कुछ को लाना पड़ेगा। सो dy by dx plus py equal to t, इज इट क्लियर? dy by dx plus py equal to t ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म और इसका सॉल्यूशन। इसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? p and q दोनों क्या है? फंक्शन है। किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। p and q बोथ आर द फंक्शन ऑफ एन x। नाउ इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे कि दैट आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में राइट करने की कोशिश करेंगे।
दैट dy by dx plus dy equal to q. p को q को सबको अलग करेंगे, p को अलग करेंगे, q को अलग करेंगे और उस वैल्यू को राइट करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन p dx। आप ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मतलब ये आपके e के पावर इंटीग्रेशन p dx, p में जो भी होगा यहाँ राइट करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। e के पावर में ये चीज आ जाएगी, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जैसे ही व्हेन यू कैन कंप्लीट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे ही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्लीट होगा, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू ना that p is the function of x and q is also the function of x, because you are integrating with respect to dx. Is it clear? So that's the reason you can say both are the function of an x. Clear? When you can complete the integrating factor, after completion of integrating factor, तो पहले स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यू कैन मल्टीप्लाई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन द फर्स्ट, इफ यू कैन टेक इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? व्हेन यू कैन कंप्लीट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू कैन मल्टीप्लाई विद दिस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आप करेंगे, जो भी आपका रहेगा उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। After multiplication, what you have to do? You have to integrate. Clear? इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको integrate। इसमें log का फॉर्मूला बहुत यूज होता है। You have to use log and exponent, logarithmic function and the exponential function. You have to use both the concept of log as well as the exponential function. तो क्वेश्चन करते करते ये सारी चीजें याद होती हैं। No need to go further. I will study log पढ़ने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया है वो सफिशिएंट है, उसका सॉल्यूशन सफिशिएंट है, जो आपको बता देगा इसमें आपको क्या करना है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म, देन यू हैव टू गो बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रेशन p dx। व्हाई वी आर इंटीग्रेटिंग विद dx? बिकॉज़ p इज द फंक्शन ऑफ एन x। आफ्टर दिस नीड टू मल्टीप्लाई विद द इंटीग्रेटिंग फंक्शन बोथ द साइड LHS as well as RHS, एंड आफ्टर दैट नीड टू इंटीग्रेट। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेट। इतने स्टेप्स आपको फॉलो करना है। क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या ऐसे ही होता है या कुछ अपना माइंड। हाँ, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, लॉगरिथम में आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। यू हैव टू यूज योर ओन कॉन्सेप्ट। देखो कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का है वो उसी रूल रेगुलेशन पे होता है, बट फर्क ये पड़ता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है मतलब उसमें लॉग का बहुत हैवी कॉन्सेप्ट लगेगा, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है, उसमें इंटीग्रेशन आप नहीं कर पा रहे, यही हो सकता है और उसमें कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्म गलत हो सकता है। ये आपको पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने जैसे आपको एक स्टोरी की तरह बताया, फर्स्ट आपको इस फॉर्म में राइट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए e पावर p dx, ये निकालिए। अब यहीं पर आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो सेकंड थर्ड स्टेप आपको करना उसकी वजह है। क्लियर? थर्ड स्टेप आपको ये कहता है कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिए LHS and RHS, and after that what you have to do, you have to do the integration of both the sides. Clear? So this one is the simple method, but it's a story only. When you can go for a solving of the question, you get difficulty will arise. Clear? We have to do it. Clear? We will start from question. Then this one is the last of the differential equation. Last one. We have a differential equation dy by dx minus y by x is equal to 2x square. Last is the last of differential equation. And after that, what problem is not coming in board examination, but I will tell not coming. This one is the last. And if you can complete all the examples of NCERT, मतलब कि आपने पूरा एक्सरसाइज कर लिया, मिसलेनियस लगा के मिसलेनियस और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एरिया बाउंड में और डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखो, एरिया बाउंड में भी वही है, जितना क्वेश्चन एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, बस किया क्या है 2 की जगह पे 3 कर दिया, 3 की जगह 2, ये ध्यान रखना। मिसलेनियस
क्लियर? तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जब मैं फिर रिवीजन कराऊंगा सेकंड टर्म में तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वही कहूंगे। अब यहाँ देखिए dy by dx minus y by x equal to 2x, मैंने आपसे क्या बोला y जो p जो है इसका फंक्शन है x का फंक्शन है, तो p जो है x का फंक्शन है। अगर इसके फॉर्म को राइट किया जाए dy by dx plus equal to एक ना p से कंपेयर करो जरा p की वैल्यू क्या हो सकती है -1/x, क्योंकि y तो ऑलरेडी है इसको क्या है y 1/x माइनस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा -1/x, इसकी वैल्यू हो जाएगी वैल्यू ऑफ द p, क्योंकि कंपेयर करेंगे y तो y के साथ है वो इशू है। So you can write it after comparison that p is equal to -1/x, and if you can go for a q equal to what 2x square, right? P equal to you have a -1/x and you have a q equal to 2x square. Is it clear? Now we go for an integrating factor. Integrating factor IF equal to e power integration q dx -1/x dx, where it will be e minus integration dx upon x. It will be e power minus log mod x. अगर इंटीग्रेट करेंगे e पावर माइनस log mod x, क्लियर? अब यहाँ पे जिसका log का कॉन्सेप्ट क्लियर है वे तो सही है, जिसका log का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वे प्रॉब्लम में आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको log का कॉन्सेप्ट याद होगा। माइनस log x है, ये जो है इसके ऊपर चला जाएगा, e पावर log x है, e पावर माइनस log x है, e पावर जैसे ये e पावर log माइनस log x है, ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाता है, आपको पता है log का सेकंड यहाँ -2 है तो ये इसके ऊपर आ जाता है। अब इसके बाद क्या होगा सर, e पावर log x पावर -1 और में ये डायरेक्टली क्या लिखा जाता है सर, ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा x पावर -1, इज इट क्लियर? डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा x पावर -1, और x पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, you can simply write it as 1/x. So simply you can use this concept, you will write it simply like x power -1 and 1 is 1/x, right? Integrating factor जो आ गया simply क्या आ गया, integrating factor is 1/x. Is it clear? So integrating factor you can write that one is 1/x. Okay? What I told, need to multiply with the integrating factor both the sides. This one is equation number 1. अब integrating factor से LHS और RHS both sides you have to multiply. Then you can multiply 1/x dy by dx equal to, clear? dy by dx minus y by x into 1/x equal to 2x square into 1/x. Is it clear? Any doubt up to this point? आया आता 1/x divided by dx minus y by x into 1/x, 2x square into 1/x. Clear? Now we have to integrate. Clear? Steps ये कहता है कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/x dy by dx is equal to y by x square, sorry, minus y by x square equal to 2x. 1/x divided by dx minus y by x square equal to 2x. Is it clear? Now we have to go for an integration. 1/x divided by dx minus y by x square equal to 2. बस इंटीग्रेशन भी इतना इजी नहीं होगा, इंटीग्रेशन y इंटीग्रेशन इज नॉट गोइंग इजी फॉर दिस टॉपिक। y upon x square 1/x divided by dx, क्लियर? अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे आप,
x माइनस 1 अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर एक चीज और करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जो x वाले टर्म्स है तो y अपॉन क्या है सर, यू आर गेटिंग y अपॉन x 1 अपॉन x डिवाइड बाय dx माइनस y अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 2x। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमें क्या करना है कि लेट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जरा देखिए इस टर्म को, क्या x कैंसिल हो रहा है? कोई भी वन बाई एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन क्या है, डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे ये सेपरेट नहीं है। इसके लिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स बताए गए। इन आर शर्मा यू हैव अ डिफरेंट मेथड, in RD Sharma you will get a different method. I will tell you the method of an RD Sharma, or the same method will be given in the NCERT. जैसे जैसे कंडीशन आ गई जब आपने मल्टीप्लाई कर, क्लियर, अब बोल दिया कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आप x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड क्या करिए, आप इंटीग्रेट करिए, क्लियर। इसके जगह पे अगर हम क्या करें, जैसे कि e पावर इंटीग्रेशन p dx, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो जो सेकंड है, जैसे कि y मल्टीप्लाई विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, जैसे एक फॉर्म लिखा जाए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर? यहाँ मैं ऐसे कहूँ, यहाँ पे देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये राइट कर दिया, इज इट क्लियर? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर, q मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx y into integrating factor is equal to q into integrating factor। y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया is equal to इंटीग्रेशन किया q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। क्लियर? एक तो है कि आपने मल्टीप्लाई किया उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए, या इस टर्म को शॉर्टली ये भी लिखा जा सकता है कि दैट इज विल आल्सो रिटेन, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, e इंटीग्रेशन p dx, दिस वन इज द मीनिंग। क्लियर? यही चीज यहाँ पर उठा के आप राइट करेंगे, e इंटीग्रेशन p dx, you have to write this one। So what you will do, y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor into dx, is it clear? So y into integrating factor, y into integrating factor आपका क्या है, 1 upon x is equal to, mind it, y into integrating factor equal to integration q into integrating factor, what is the q, 2x square, 2x square इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, 1 upon x, ये भी राइट किया जा सकता है। It will be, when it will be written, then it will be y by x, simply x is cancelled out with that, clear? When you can integrate, you will get y by x equal to this one cancel out with this one, what it will be, 2x will be, 2 will be outside, integration of x, x square plus c, so you will get 2x square plus c, y by x equal to 2x square plus c, clear? And x जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, and it will be multiply here, so it will be 2x cube, is it clear? So you can simply write it as y equal to 2x cube plus c, clear? और c में भी मल्टीप्लाई होगा दैट cx, अगर c नहीं लिखना है तो 2x cube, is it clear? This one is the solution of the differential equation, simple, this is the first we will do this thing, this one is the most important and most difficult, last one, dy by dx minus y by x equal to 2x square, इसको इससे कंपेयर किया, p की वैल्यू निकाला, t की वैल्यू निकाला,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट है इसको सेपरेट करना, यू विल यूज द फॉर्मूला दैट y मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. It is also given in the NCERT. Same thing given in the NCERT also. Is it clear? Same question, same thing. Maybe given in NCERT also it's given. So in NCERT also you will get the questions. Yeah. That one. dy by dx plus py equal to q. dy by dx plus py equal to q. Integrating factor you will calculate. Write the solution of the given differential equation as y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c. Clear? So this kind of things are given where p1 and q1 are constant or function of y only, then integrating factor p by dy and solution of differential equation. Is it clear? So you have to do this thing. Clear? ये मैं आपको ये बता दिया ये चीज ऐसा आप डायरेक्टली ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत डिफिकल्ट है इसको इंटीग्रेट करना. That's the reason. Is it clear? Otherwise the method is very simple that you have to separate it and you have to integrate. Separate करिए और integrate कीजिए. हाँ x square cancel by 2x with x का integration x square by 2. x square by x into 2 x square by 2 this will be cancelled. Right? वे तो मैं ऐसे बता रहा हूँ इंटीग्रेटिंग. राइट? आपको ये ध्यान रखना है. मैं क्वेश्चंस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन सही होना चाहिए, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर? x से x कैंसिल होगा, यहाँ पर बचा 2x x स्क्वायर बाई 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा ये जो x है इससे मल्टीप्लाई होगा x क्यूब. क्लियर? x क्यूब प्लस x. इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्म पे दिए हैं. मोस्टली क्वेश्चंस आर इन दिस फॉर्म. क्लियर? वी हैव टू सॉल्व मोस्टली क्वेश्चंस. I will go for one more questions. Don't worry. Yeah, one thing more. Mostly in these questions we are using the integration by parts. I like. So need to keep this thing in mind. एक भी स्टेप गड़बड़ हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन गड़बड़ हो गया. इसलिए मैं बार-बार आपको स्टेप्स याद दिला रहा हूँ. स्टेप बाय स्टेप करिए. ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा कि नहीं मुझे आता है मैं ये कर लूँगा. एक ही स्टेप मिस होगा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. मेरा अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं. हम लोग कितना प्रैक्टिस याद हो जाता है, लर्न हो जाएगा. मैं आपको सही बता रहा हूँ. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं. बस एक बार इसका सोल्यूशन बना लीजिए एनसीईआरटी का और पूरा बैठ के उसको 10-20 बार लगा लीजिए. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारा क्लियर हो जाएगा. आपको मतलब क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी साफ हो जाएगा. हमें इम्पोर्टेंट सही हो जाएगा. क्वेश्चन देखा सोल्यूशन याद. अगर लोगों में लॉन्ग का कॉन्सेप्ट यूज करना एक्सपोनेंशियल का कितना कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे अपने पास बोर्ड में. बोर्ड में यू हैव ओनली 3 hours and you have to show your own caliber on the notebook that answer sheets. आंसर शीट्स पे कैलिबर दिखाने का अच्छा तरीका यही कि आपको पूरी तरीके से लर्न होता है. इफ यू आर कमिंग फॉर प्रेजेंटेशन यू आर वेरी इंटेलिजेंट बट यू डोंट नो एनीथिंग. आपको लर्न ही नहीं अपना प्रेजेंटेशन. आपसे कोई क्वेश्चन किएगा और डेटा आपको याद ही नहीं. इसका कोई मतलब नहीं है उस प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन मतलब जितने ऑडियंस वहाँ बैठे हैं वे आपसे सेटिस्फाई होने चाहिए. चाहे आप कुछ भी हो, आपको आपका कोई डिग्री ना हो बट वे लोग सेटिस्फाई होने चाहिए. आप सेम क्वेश्चंस पे हैव टू गो फॉर one question. I am telling you dy by dx plus y upon 2x is equal to 3x square. Clear? dy by dx plus y upon 2x equal to 3x square. ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. dy by dx plus y upon 2x equal to 3x square. We will compare dy by dx plus py equal to q. Clear? Y से y की है, p की जगह पे क्या आ जाएगा?
1/2x. On the place of a cube, you have a 3x square. यहाँ तक clear हो? P equal to 1/2x and Q equal to 3x square. Now we will go for integrating factor. Integrating factor equal to P integration P dx. Integration P equal to क्या है? 1/2x. That means dx. P 1/2 outside. dx upon x. 1/2 log x. E log x पावर 1/2. ये सेम हो जाएगा x पावर 1/2. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? x पावर 1/2. अभी बताया था मैंने e पावर log x माइनस 1 होगा तो x माइनस 1. उसी तरह ये क्या हो जाएगा? x पावर 1/2. याद हो गया? अब ऐसे जितने आएंगे आप राइट कर लेंगे. अब इसमें एक्सपोनेंशियल और लिमिटिंग याद कर. When you can solve the question, you will do. Clear? So x power 1/2 is the integrating factor. So integrating factor equal to x power 1/2, or you can say write it as a root x. Is it clear? Now what we have to do? We have to multiply with the integrating factor, or directly you can do one thing. आपको पता है कि ये x का फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे? y multiply with integrating factor is equal to integration q into integrating factor plus c. फिर तो आप यूज करिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? root x equal to integration q की वैल्यू क्या रखते हैं? 3x स्क्वायर into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? root x. इज इट क्लियर? yes. यहाँ पर आ गया, राइट कर लिया आपने. क्लियर? देख सकते हैं ये हो सकता है. क्लियर? एनी डाउट एट ऑल? अगर इस रूट एक्स को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये टर्म शो कर सकते हैं. एक बार ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना करेंगे, और ये आप डायरेक्टली इसकी ये शो डिपेंडिंग ऑन यू. अब एक टर्म ये भी शो कर सकते हैं कि मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन सब में. इज इट क्लियर? नो इश्यूज. y into integration x root x equal to integration 3x square into root x dx. Clear? Y root x equal to 3x square x power 1/2. 3 will be common. Integration x square into x power 1/2. 2 plus 1/2 कितना होगा? 4 plus 5/2 x power 5/2 dx. याद है? y root x equal to 3 5/2 plus 1 7/2 x power 7/2 upon 7/2. Is it clear? x power 7/2 divided by 7/2 होगा 7/2. x n plus 1 divided by n plus 1 5/2 plus 1. Here 7/2. Y root x equal to 3. क्या होगा? 2 will be 2/7. 2 will be here. It will be 6. 6/7 x power 7/2. इससे ये जाएगा y equal to आप ये लिख सकते हो 6/7 x power 7/2 x power 1/2. इसके नीचे आ जाएगा y equal to 6/7 x power 7/2 into x power 1/2. ये ऊपर जाएगा x power -1/2. बेस सेम पावर एडेड 7/2 plus -1/2 is -1/2. कॉमन लीजिए 7 minus 1 will be 6/2. 6/2 का मतलब क्या होगा? 3 6/2 ना? हाँ 6/2 प्लस और इसके साथ क्या था? c था, तो प्लस c और ये क्या था? रूट x इसके नीचे क्या है ना? c अपॉन रूट x. क्लियर? राइट. या इसको लिख सकते हैं c मल्टीप्लाई विद x पावर -1/2.
This is the method of solving this type of questions. इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप जरूर क्लियर। वाई वाले टर्म आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे जो dx है यहाँ dy हो जाएगा, यहाँ y की जगह पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें अगर मैं बताऊँगा तो आपका यूज हो जाएगा। इससे अच्छे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सामने रहेगा, सोल्यूशन रहेगा, देन यू कैन सॉल्व, यू विल गेट इट। वरना मैं लगूंगा करने कि ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, तो आप इसलिए जरूर करोगे। आप इतना प्रैक्टिस करो। थैंक यू।